Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the last lectures, we can study about the different type of relays for the distance protections relay. So, we can see in the different type of relay. So we can see that the effect of arc resistance. So arc resistance is the critical arc locations is just the sorts of the point on the line at which the distance relay is operating, and operations change from the high speed impedance. We are connected with the possibility that and the arc within the high speed zone will make the relay operate in the intermediates. So these are the basic informations of the electrical arc resistance. Then after we can see the effect of arc resistance in the different relays. यहाँ पे सबसे पहले था इम्पीडेंस रिले. सो इम्पीडेंस रिले में ऐसे था कि आर्क रेजिस्टेंस, यस, अगर मैं यहाँ पे लाइन इम्पीडेंस कंसिडर करता हूँ और उसके हिसाब से पूरा आर एक्स डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, तो जो फॉल्ट और रेजिस्टेंस की जो एडिशंस वैल्यूज़ है वो जो इनर में होगा तो देर आर दी अंडर रिच कंडीशंस. अगर इससे बाहर यहाँ पे होगा तो दिस आर दी ओवर रिच कंडीशंस. वैसे ही यहाँ पे मूव रिले है, आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है आर, यानी कि ज़ीरो सेंटर पॉइंट है. ये जो पूरा मूव रिले का है वो सिर्फ एक ही रीजन्स है, यानी कि आर रीजन्स में है. यहाँ पे भी सेम जो एंगल्स है वो थीटा और उसके हिसाब से इम्पीडेंस, लाइन इम्पीडेंस की वैल्यूज़ जो इम्पीडेंस रिले उससे ज़्यादा रहेगा. और वैसे ही द मूव सर्कल शिफ्टेड फ्रॉम द आर एक्सिस, अगर जो रजिस्टेंस की वैल्यूज़ कम हो जाती है तो ये इस तरह सा रिप्रेजेंट होगा. सो दिस आर दी. देन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस फॉर दी वन कॉमन डायग्राम. Then after we can see the types of distance relay. The working principle, we know that the distance relay that depends upon the ratio of the voltage and current, and the ratio of voltage and current is nothing but the impedance. So the distance relay is also known as the impedance relay. The distance or the impedance relay is essentially the ohmmeters, and the operates whenever the impedance of the protected zone falls below the प्रीडिमेटेड वैल्यू, यानी कि जो वैल्यूज प्रिडिक्ट की है उस पर डिपेंड्स है. नाउ बेसिकली देर आर दी टू टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले. So first one is the definite distance relay, and then after the time distance relay. So definite time distance relay is operate instantly for the fault upon the predetermined distance फ्रॉम द रिले. अगर जो वैल्यूज़ हमने पहले से सेट की हुई है उसके नज़दीक आएगा तो तुरंत ये ऑपरेट हो जाएगा. बट इन द टाइम डिस्टेंस रिले विच द टाइम of the operations is proportional to the distance of the fault from the relay point and the fault near to the relay. So उस पर डिपेंड्स है. नाउ these are the constructions for the definite distance relay. यहाँ पे एक बीम रहता है और एक जगह पे पीटिंग और दूसरी जगह पे सिटी कनेक्टेड किया जाता है. अगर नॉर्मल कंडीशंस है, यानी कि वोल्टेज नॉर्मल है करंट के हिसाब से, V is greater than the I, so at that time this coil will be energized and this will be connected, so trip नहीं होगी. But when the
fault conditions, we know that in the fault conditions we know that the I is greater than the voltage, and the cities will be energized and this coil will be energized and the trip circuit will be connected. So these are the basic functions of the distance definite relay. So these are the equations. The k1 v square is greater than the k2 I square. So इक्वेशन इज वी स्क्वेयर अपॉन आई स्क्वेयर इक्वल टू के टू बाई वी वन. अगर वी बाई आई कर देते हैं तो अंडर रूट ऑफ के टू बाई आई वन एंड वी बाई आई इज द इम्पीडेंस इन द सिंपल फॉर्म्स. नाउ द डिफाइनाइट टाइम डिस्टेंस रिले द कंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे जो आप कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं वो ऑलरेडी हमने स्टडी किया था वोल्ट आवर मीटर पे. सो वोल्ट आवर मीटर के जैसे ही ये वर्क करता है. So these are the operating system. Then after the adjustment of the distance relay, यानी कि यहाँ पे अगर हम दो सिस्टम की बात करें तो Z1 एंड Z A एंड ZB है एंड रिले ऑपरेट होगा तो वो रजिस्टेंस पे डिपेंड होगा. तो वी आर इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ZB प्लस I1 into ZA. So resistance values is IR is depend on the I1, so that this ZR equal to VR by IR equal to these equations is the calculations for the resistance impedance. So the secondary impedance we can find that V2 upon I2 equal to V1 upon PT's ratio into CT upon I1 equal to V1 by I1. So ये तो क्या है Z, यानी कि Z प्राइमरी है. सो इम्पीडेंस फॉर दी प्राइमरी साइड इनटू द सिटी रेशियो अपॉन पीटीस रेशियो. और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स दिखा था. सो द लास्ट लेक्चर्स वी कैन स्टडी ऑफ दिस. नाउ द टुडेज टॉपिक और in the last topic is the 3-step distance time protections and the trip contact configurations. So now start with the 3-step डिस्टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली डिस्टेंस रिले क्या करता है. तो वी नो दैट द डिस्टेंस रिले और डिस्टेंस प्रोटेक्शंस रिले इज द नेम गिवन बाय द प्रोटेक्शंस whose actions depend on the distance from the फेडिंग पॉइंट टू द फॉल्ट. यानी कि जो फॉल्ट है उसको उससे जो रिले है उस तक का डिस्टेंस. सो द टाइम ऑफ द ऑपरेशन of such a protections is the functions of the ratio of the voltage and current. So this is called the impedance. Now this impedance between the relay and the fault depends on the electrical distance between them. So that the principal type of the distance relay is impedance relay and the reactance relay and the reactance relay. Okay, so actually यहाँ पे डिस्टेंस रिले क्या होता है कि जो ये रिले है वो हमको पता है कि ओनली 80% तक ही वो फॉल्ट मेज़र करता है. उसके बाद उसकी लिमिट आ जाती है. तो उसको ऐसा होता है कि जो 20% जो रह जाता है उसको हमको अगर वहाँ पे कोई फॉल्ट आता है तो किस तरह से प्रोटेक्ट करें. तो फॉर दिस रीजन्स हियर द एप्लीकेशंस ऑफ द डिस्टेंस प्रोटेक्शंस रिले. सो डिस्टेंस प्रोटेक्शंस रिले इज widely spread employed for the protections of the high speed and the AC transmissions line and the distributions line will be used. Then after the another application is it provide the faster protections compared to the overcurrent relay. Then after the it has the permanent setting without the need for readjustment, and the direction protection relay has the effect of amount of generations and the fault level.
Now the last one is the fault current mitigations or magnitude permits the high line loading. This one is also applicable for the primary and secondary backup relays. Now the reason for the inaccuracy of the distance reach or distance relay reach, so it is not possible to obtain the exact 100% reach for the distance relay. It means that there are the some reasons due to which the reach कैन नॉट बी एग्जैक्टली 100%। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाए तो डिस्टेंस रिले 100% कवर नहीं कर सकता। सो उसके रीज़न क्या है? द फर्स्ट रीज़न इज द प्रेजेंट ऑफ द डीसी ऑफसेट इन द फॉल्ट करंट वेव कॉज ओवर द रीच ऑफ द रिले। यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीसी ऑफसेट, ऑफसेट मीन्स कि जो कट होता है, जो वेव्स होती है, इस तरह का जो वेवफॉर्म होता है उसमें डीसी ऑफसेट यानी कि वहाँ पे कट हो जाएगा। सो डीसी ऑफसेट द करंट सिंस बाय द रिले इज हाई, करंट जो होता है वो हाई होता है। सो दिस रिड्यूस द इम्पीडेंस सीन बाय द रिले then its actually value and the relay tends to overreach। यानी क्या होता है कि ऑफसेट होने की वजह से ओवर रिच का प्रॉब्लम रहता है। देन आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर यानी कि सीवीटी इज ऑल्सो कॉज ऑफ द रीच ऑफ द डिस्टेंस रिले। इट मीन के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द कैपेसिटी, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की कैपेसिटी है सीवीटी, इज ऑल्सो कॉज फॉर द ओवर रिच प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ आर्क रेजिस्टेंस। जैसे ही हमने आगे देखा था, द प्रेजेंस ऑफ द आर्क रेजिस्टेंस कॉज अंडर द रीच ऑफ द रिले। यानी कि ड्यू टू द आर्क रेजिस्टेंस द इम्पीडेंस सीन बाय द रिले इज मोर देन द एक्चुअल इम्पीडेंस of the line up to the point of the fault. So these may shift the point of the operations outside the presence operating point causing the under reach conditions। अब क्या होगा कि जो आर्क रेजिस्टेंस है, जैसे ही हमने आगे देखा कि जो उसका आर एक्स का जो डायग्राम था ये, ठीक है, तो फॉल्ट जो लाइन में आ रहा है, जो फॉल्ट हुआ है, तो वहाँ का डिस्टेंस से पहले ए आर्क रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो वो कंसिडर करेगा तो हमने जैसे ही आगे देखा द अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन K2, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉल्ट है वो अंडर रिच कंसिडर होगा और फॉल्ट रिमूव नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज द एरर इन द रेशियो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। अगर हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखे हैं सीटी एंड पीटीज, उसमें अगर कोई फॉल्ट या एरर है तो उसकी वजह से भी हमको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता है। सो दीज आर द रीजंस फॉर द इनएक्यूरेसी ऑफ डिस्टेंस रिले। सो उसके रिमूव के लिए, ये जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए हम डिस्टेंस प्रोटेक्शंस रिले में 3 स्टेप टाइम प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं। अब 3 स्टेप क्या है? सो यू कैन सी द फिगर्स। जनरली दिस सिस्टम इज़ वाइडली यूज, जनरली यही सिस्टम जनरली यूज़ होती है बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फीडर इन सीरीज सच दैट द पावर फ्लो फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द सब स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक यही होता है। सो नाउ you can see here if I consider that कि यहाँ पे ए पावर स्टेशन है, यहाँ पे बी पावर स्टेशन है और यहाँ पे सी पावर स्टेशन है। सो रिले आर प्लेस एट दी, यू कैन सी दैट ए बी सी। नाउ they are set the operate with the impedance in, अगर यहाँ पे है तो ZA, देन यहाँ पे है तो
जेड बी एंड आगे आएगा तो जेड सी respectively. Now the relay at the A would be very reliable in the distinguishing between the fault in 99% of the AB, the 101% of the distance of AB. Now किस तरह से ये वर्क होगा? तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो जोन 1 की बात मैं करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 80% ऑफ द प्रोटेक्शंस इन प्रोटेक्टेड ऑफ द लाइन, यानी कि ए जो पूरी लाइन है ए और बी के बीच में सिर्फ वहाँ पे 80% ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ तक 80% ही है। नाउ द जोन 2 द 100% प्रोटेक्शंस ऑफ लाइन, यानी कि ए पूरी लाइन देन आफ्टर प्लस 20% ऑफ द शॉर्टेस्ट एडजस्टमेंट लाइन द सेक्शंस, यानी कि 100% प्लस 50% ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इम्पीडेंस, यानी कि यहाँ पे 100% और यहाँ पे 50%, सो 150% को कवर करता है। एंड द जोन 3 is to protect for the 100% of protections lines plus 100% of longest adjustment line and the 100% of transformer impedance. So these three zone will be applicable. So now we can consider that if I talked with the zone 1 protections, it means that the element is instantaneous one and the cover the first 80% of the area within the substations. Now if I consider the zone 2, so zone 2 element has some time delay and cover the 20% portions of the protected sections प्लस द 20 to 25% एरिया ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो 20% रह जाता है वो प्लस 25 to 50% अनदर protections. And the zone 3 is the backup protections. Zone 3 is the backup protections which act as the higher time delay which covers the remaining protections area. So these are the basic working with the constructions and the working. Now you can see here, now the consider the causings of the fault occurs at the fault. You can see that यहाँ पे fault हुआ है between the B and C. So the relay at the B should be, जो यहाँ पे जो relay है B should be operated as the fault is within the protected zone and the first one is the less than the set value. यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सेट वैल्यू से कम है इसलिए, बट हियर वी हैव द प्रोवाइड द 3 स्टेप प्रोटेक्शन सो दैट द जोन 1 एलिमेंट एट अ बी ऑपरेट इंस्टेंटली। यहाँ पे जो बी है वो तुरंत ओपन हो जाएगा एंड द आइसोलेट द फॉल्ट सिस्टम, यहाँ से ओपन हो जाने के बाद क्या होगा ए आइसोलेट कर देंगे। इफ़ दिस एलिमेंट फेल्स टू ऑपरेट देन जोन 2, यानी कि ए जो सिस्टम है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हैविंग द सम टाइम डिले शुड ऑपरेट एंड इट एक्ट एज द बैकअप प्रोटेक्शंस टू द जोन एलिमेंट बी। इफ़ द जोन एलिमेंट 2, अगर जोन 2 भी एलिमेंट फेल हो जाता है तो जोन 3 ओपन होगा। सो दिस आर द 3 स्टेप वर्किंग प्रिंसिपल और द प्रोटेक्शंस ऑफ द डिस्टेंस डिले। सो यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप समझाया हुआ है कि ये जो सिस्टम है, जो फर्स्ट स्टेप है वो कंसिडर होगा कि ए से लेके बी तक, यानी कि ए जो है पूरा 80% है। यू कैन सी दैट देन आफ्टर इतना कवर करेगा, यानी कि 0.8 to 0.9 और उसको बोलेंगे ZAB। in the next one, the next step, in the second step you can see that कि भाई Z1 तो कंसिडर होगा, यानी कि Z2 ये जो
ZAB में ये 20% जो रह जाता है वो, प्लस यहाँ पे 25 to 50% यहाँ पे दिया हुआ है कि ZAB इतना तो कवर करता ही है, उसके अलावा ZAB प्लस 50% ऑफ ZBC। एंड द नेक्स्ट वन एंड द थर्ड वन is considered that the Z3 is ZAB plus 1.2%, यानी कि 100 से लेके 120% तक ZBC को कवर होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ए प्राइमरी प्रोटेक्शंस होगा, देन आफ्टर ZAB ए बैकअप प्रोटेक्शंस, एंड उसके लिए भी एक बैकअप प्रोटेक्शंस है। सो दीज आर दी 3 स्टेप प्रोटेक्शन सिस्टम्स यू कैन सी हियर, कि भाई पहले ये अगर यहाँ पे फॉल्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉल्ट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्ट होगा तो सबसे पहले ए यहाँ का जो रिले है वो ऑपरेट होगा। अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो बी का ओपन होगा, और ये भी फेल हो जाता है, देन आफ्टर यहाँ पे ओपन होगा। सबके टाइम जो रिले के टाइम है वो अलग अलग होंगे। सो these are the 3-step time protection systems. So these are the some configurations with step. You can see that in the first step you can reach the 80 to 90% of the lines, and operating time is instantaneously, so no interactions time with the delay. It means it provides the primary protections to the line up to 80%. In the secondary, the 100% of line or the sections under the considerations plus 50% of adjoining line, यानी कि टोटल टाइम जो टी हमने यहाँ पे आगे देखा वो प्लस द सिलेक्टिव टाइम इंटरवल्स यानी कि T1। सो यहाँ पे प्रोवाइड्स द प्राइमरी प्रोटेक्शंस टू द part of the left out of the 20 to 10%, and the full backup protections to the line sections under the considerations, and the backup protections to the next up to the 50%. And the last one is the 100% of the sections under the considerations plus 100% of the adjoining line, and then after the 20 to 20% यानी कि T1 ए जो है वो प्लस सिलेक्टिव टाइम ऑफ द इंटरवल। सो फुल बैकअप प्रोटेक्शंस टू द sections under the considerations and the full backup protections of the next line. So these are the 3 steps time protection systems. Now the trip contact configurations, तो ये क्या है ट्रिप कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस। ट्रिप यानी कि हम जानते हैं कि किस तरह से सर्किट में और पावर सिस्टम में ट्रिपिंग होगा, उसके लिए है। सो यू कैन सी द फिगर्स, द ट्रिप कॉन्टैक्ट सर्किट रिप्रेजेंट द 3 स्टेप प्रोटेक्शन स्कीम। ये जो ट्रिप है वो 3 स्टेप प्रोटेक्शन स्कीम के लिए है। सो व्हेन देयर इज द फॉल्ट विथ इन द रिच सेटिंग ऑफ FD, अगर ये जो FD है यानी कि फॉल्ट डिटेक्टर है वो रिच प्रोटेक्शन के अंदर होगा, यानी कि इट डिटेक्ट्स द इंस्टेंटेनियसली एंड इट इज़ इनिशिएटिव फॉर द टाइमर, एंड FD इज़ नॉर्मली ओपन। यहाँ पे जो FD है नॉर्मली क्या होगा, ओपन होता है, यानी कि जो रिच कंडीशन के अंदर है, विच गेट द क्लोज व्हेन इट डिटेक्ट्स द फॉल्ट। वो तभी को क्लोज होगा जो फॉल्ट डिटेक्ट होगा। तो फॉल्ट किस तरह से कंसिडर करते हैं। सो हियर द टाइमर गिव्स द 2 आउटपुट्स, वन आउटपुट इज आफ्टर द टाइम डिले ऑफ T1, ये T1 के बाद देगा, एंड द अनदर आउटपुट आफ्टर द टाइम डिले ऑफ द T2, एंड बोथ T1 and T2 आर नॉर्मली open contact, and which gets the close once the timer gives the output to the T1 and T2. Now if the fault conditions within the Z1, the first step is ये जो Z1 है
जो हमने आगे देखा कि भाई Z1 इज कंसिडर द 0.8 ZAB, then after Z2 is ZAB plus 0.5 ZBC and the Z3 is ZAB यानी कि impedance of AB plus impedance of BC plus 0.5% 0.5 ZCD. So first step is Z1 open होगा and the FD together they energize the trip coil and the circuit breaker will be open. Now if the fault of within the Z2 अगर Z2 में हो रहा है, so trip coil get the energized and through the series combinations of Z2 and T1 यानी कि FD में से होके Z2 में होके T1 में होके ट्रिप कॉइल में जाएगा. अगर फॉल्ट इन विथिन दी Z3 यानी कि थर्ड स्टेप है, सो यहाँ पे Z3 में आएगा FD में से लेके Z3 then T2 and then after the trip coil. So these are the trip contact configurations for the three-step systems. Now the next one is the three-step protections for the double feed transmissions line. यानी कि हमने आगे जो देखा था वो है सिंगल ट्रांसमिशन फीडर, यानी कि ये जो सिंगल लाइन होती है यानी कि दूसरे एंड पे सेकंड फीडर नहीं होता है, उसके तब था. नाउ द यू कैन सी द फिगर्स फॉर द doubly fed transmissions line. Here you can see that the three-step protections can be provided to the transmissions line which are fed from the both the ends, and when the fault occurs on such a line that the fault power flow from the both the sources. अब फॉल्ट होगा तो बट ऑब्वियस है कि दोनों में से सोर्सेस होंगे. सो हैंस द प्रोटेक्शन स्कीम इंक्लूड द सर्किट ब्रेकर्स एंड द थ्री स्टेप प्रोटेक्शंस इज required in the both the end. So you can see the figures for the three step protections for the doubly fed. Here the line AB, you can see that here the line AB is under the considerations. In this case we can consider that the 20% of, you can see here, the 20% of the line under considerations of either the end of part in the step 2. So thus only the 60% passed, 60% of the line of AB under the considerations and get the instantaneous protection. अब किस तरह से प्रोटेक्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% ऑफ EF NBC और यहाँ पे CD है. सो किस तरह से ये वर्क होगा, सो वी कैन सी दैट यस हियर. सो इन द फर्स्ट स्टेप्स in the one sides you can see that the impedance of Z2, you can see that Z2 यहाँ पे Z2 है. So Z2 is ZAB plus 50% of ZBC, while on the outer side and total impedance Z is depend on ZAB plus 50% of AE for the step 2 which get the protect after the interval T2. Now why in the last step यानी कि जो थर्ड स्टेप है, the ZE is depend on ZAB plus ZBC, ZAB plus ZBC, and then after the 50% of ZCD यानी कि impedance CD on the one side, while in the Z3 is ZAB plus ZAE plus 50% of EF on the other side, so which get the protect after the delay time interval T2. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी साइड यहाँ पे 3 इम्पीडेंस है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 3 इम्पीडेंस है, यानी कि यहाँ पे 20% कवर होगा और यहाँ पे 60% कवर होगा. सो यहाँ पे 20% है. तो ये जो दो इक्वेशंस आप देख रहे हो, इसीलिए दो इक्वेशंस है, वन साइड फॉर दी वन फीडर एंड द अनदर इक्वेशंस फॉर दी secondary sides or other feeder, sorry not a secondary side, other feeder.
So what is the advantages of the three-step protection systems? The efficiency protections can be achieved. Then each element of the power systems are provided with a separate protection scheme. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पावर सिस्टम है और जो भी सब स्टेशन है हमको यहाँ पर हम अलग अलग प्रोटेक्शन दे सकते हैं. सो द नो पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम इज लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, यानी कि हम कोई पार्ट अनप्रोटेक्टेड यहाँ पे नहीं रख सकते, यानी कि रहता नहीं है, तो इसके लिए वो अच्छा है. देन आफ्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर द फॉल्ट इज़ लेस. सो टाइम रिक्वायर्ड कम हो जाता है फॉल्ट अगर कम हो तो. व्हेन द फॉल्ट अकर्स ओनली दोज प्रोटेक्शंस एलिमेंट इज़ आइसोलेटेड. पूरी सिस्टम बंद नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे फॉल्ट है वो पोर्शंस को आइसोलेट किया जाता है. सो ईच जोन में बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिफरेंट रिलेइंग टेक्निक. और इस अलग अलग जोन को हम अपने हिसाब से उसके इम्पीडेंस के हिसाब से हम अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द थ्री स्टेप्स. नाउ now the today's your assignment question is the draw the figure of the trip content configuration and explain. आपको यहाँ पे जो मैंने जो समझाया कि Z1 Z2 Z3 किस तरह से ऑपरेट होता है वही शॉर्ट में 2-3 लाइन में लिखना है. देन आफ्टर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस द एक्सप्लेन इन डिटेल्स द टाइम डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 3 इम्पीडेंस रिले यूनिट यूज फॉर द 1 सेकंड एंड थर्ड जोन प्रोटेक्शन सिस्टम. यहाँ पे आपको 3 प्रोटेक्शन जोन जो फर्स्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट स्टेप कैसे कवर होता है, सेकंड स्टेप कवर कैसे होता है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. सो योर गूगल क्लास नेम इज़ योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, यूनिट 5 एंड वर्कशीट 18. If any questions regarding this topic, you can mail me, and if any query regarding this topic, you can contact me. My contact number and the mail ID number seen your screens. Thank you.